Okay, ji, hello everyone. Now today we have class number 17 and today I will teach you how we can make the database. Okay. So now understand the theory first of all. Example, I just go to the MS Paint. Okay. MS Paint. Okay. And now understand in a office here it is my cloud and this is my office, and according of the scenario here I will make my database over the cloud and my client or I am can access from the account here. Okay, it is the way to make the database. So now today I will teach you how we can make the database over the cloud, and after that how I can access it with my personal system. So here first of all here I will attach with my Linux OS. Okay, so here first of all I am just start my OS. Please wait. Yeah, I just start my OS or here. एक second. Yeah. Okay, now it will take time, तो तब तक हम इधर आ जाते हैं. Now understand according of the picture. So now it is the first theory. Up second theory. If I make the database in my office, if I make the this type of the server in my office, so how? So first of all we example it is my web server. Okay, ये हमारा एक वेब सर्वर होगा और here it is attached, or now we have a application. The second one is we have application server, and through this web server I am execute my application. ठीक है, first thing. For the data security we connect here the database. First of all, if I do the any type of the entry in the application, it will save in my database. Okay, database. Now its data is important for us. So now for what we do, we make our storage. We attach our another storage here. Okay, for copy paste the data from here to here. So it is my second storage, and after that we have to take the backup. So now these are the expensive thing for if I make the on premises data center of the database. So here I will take the backup. तो आप देख सकते हो कि इसमें कितना पैसा खर्च होगा, कितना हमारा टाइम खर्च हो रहा है ना. अब नाउ अंडरस्टैंड हियर. तो ये जो आपका डेटाबेस है ये आपके ऑन प्रेमिसेस है. अब क्लाउड ने कहा कि नो नीड टू these type no need to purchase these thing and just make the database in my cloud. So how? So here I just open the MS Paint. एक second, someone want to join us. Yeah. Now understand here. The cloud saying कि okay, I will provide you a database. First of all, क्लाउड ने कहा कि मैं आपको खुद अपना एक डेटाबेस प्रोवाइड करूंगा. तो नाउ इट हैज 8 टाइप ऑफ डेटाबेस. या इट हैज 8 टाइप. ओके, आई विल टेल यू. आफ्टर दैट इट इज सेइंग कि ओके, I will also provide the 20 GB free storage. 20 GB free storage ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. इसके बाद में स्टोरेज. आफ्टर दैट after that I will also take the backup. So now these thing is done by the cloud. ठीक है. So first of all it provide the free database and the hardware is t2.micro. It is saying ki okay, I will provide a database instance and the hardware is t2.micro. Okay, I will also provide the 20 GB free storage and I will also take your backup, and for the backup I will also provide you 20 GB. तो इतना ये फ्री है इधर आपके फ्री अकाउंट में, ये इतना आपका फ्री है. ठीक है, तो चलिए I will tell you how we can make the database and connect with my personal system. So first of all here AWS cloud provide the. So first of all if anyone asks you what is database, ये होता क्या है.
तो नाउ it save the data, it save the data, it save the text data in rows and column form, rows and column form, column form, ठीक है। अब now AWS provide the database, ये कौन कौन से हमें प्रोवाइड करता है? तो फर्स्ट थिंग इट प्रोवाइड द MariaDB, MariaDB, ठीक है। सेकंड थिंग इज Oracle का डेटाबेस, Oracle database. Third one is PostgreSQL, PostgreSQL. After that it provide the Amazon is okay. After that it provide the MySQL, okay. After that it provide the Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Server. After that it provide the IBM database. और Amazon has on two type of the database, so it's called Amazon Aurora, Amazon Aurora, okay. So now it has two types. The first one is MySQL compatible, एक ये MySQL के हिसाब से है, और एक आपका PostgreSQL. तो just type here. Another one is Amazon Aurora of according to PostgreSQL, ओके। तो ये 8 टाइप के आपको डेटाबेस प्रोवाइड करता है। एंड अगेन टेल यू इट प्रोवाइड द फ्री क्या क्या, एक RDS अकाउंट, RDS। अब नाउ हाँ, हियर अंडरस्टैंड इन द AWS it is called RDS. आज जो मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा उसका नाम है RDS. RDS स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस सर्विस, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस, इसको हमने क्लाउड में कहा, ओके। अब नाउ Amazon सेइंग कि ओके आई विल प्रोवाइड यू RDS इंस्टेंस। एक सेकेंड, Amazon saying okay I will provide the RDS instance, okay, and the instance is 750 hours free, इतने hours ये पर मंथ आपके लिए फ्री है, ठीक है, 7 hours फ्री, ओके। एंड द हार्डवेयर इज T2.micro, इस हार्डवेयर पे मैं आपको ये फ्री प्रोवाइड करूंगा। आफ्टर दैट आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द 20 GB स्टोरेज फ्री, 20 GB storage free. After that I will provide the 20 GB backup free, ठीक है। तो now this thing and I will also take your backup, ठीक है। तो ये इन्हीं का काम होगा, बैकअप मेंटेनेंस। So 750 hours per month, it's per month yes, or for per all month, time? yes, per month, okay। After that it is also saying कि okay I will do my hardware मेंटेनेंस ऑल्सो, तो हार्डवेयर मेंटेनेंस भी आपका होगा, ठीक है, मेंटेनेंस। चलिए, तो नाउ लेट्स मेक द डेटाबेस ओवर द क्लाउड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनदर थिंग इज या हियर इसके RDS के टाइप्स होते हैं, मीन्स डेटाबेस या RDS इंस्टेंस के टाइप होंगे, RDS इंस्टेंस टाइप, इसके टाइप्स होते हैं कौन कौन से। द फन इज सिंगल अवेलेबिलिटी जोन, सिंगल अवेलेबिलिटी जोन इंस्टेंस। अनदर इज मल्टी अवेलेबिलिटी जोन इंस्टेंस, मल्टी जोन। और अनदर इज रीड रेप्लिका, रीड रेप्लिका RDS। इसमें क्या होता है, इट मेक अ सिंगल इंस्टेंस इन अ सिंगल अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है, वन जोन ओनली। ये जो आपका इंस्टेंस होगा ये सिर्फ आपका वन जोन में होगा, बस एक ही जोन में, लेकिन इट विल मेक द मल्टीपल इंस्टेंस इन द मल्टीपल जोन,
ठीक है, तो यहाँ पर मैनी जोन्स। तो अगर कल को इसे कुछ हो जाए, अगर एक जोन को, हालांकि ऐसा कभी कुछ होगा नहीं क्योंकि इनके खुद के भी होती हैं प्रायोरिटीज, बट अगर हो गया तो फिर आपको इश्यू आएगा, इसीलिए यू हैव टू चूज हियर। ठीक है, और नाउ अंडरस्टैंड हियर, हियर आई कैन रीड द, हियर आई कैन रीड एंड राइट द डेटा। इधर मैं कुछ भी कर सकता हूं, इधर भी सेम, रीड एंड राइट द डेटा, but here we can read. So sometime I can, if you have any read query, so now you can only go here. ठीक है, but if you need to edit the anything after that you can come to here. ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन भी इधर हाई आपका होता है। ठीक है, चलिए जी, तो नाउ अच्छा, अब सिंगल, अब एक चीज बता देता हूं आपको, हाँ यहाँ पर yeah, अब तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू हाउ वी कैन मेक द RDS। ठीक है, तो पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा सिंगल एबिलिटी जोन इंस्टांस कैसे आपकी होती है, सिंगल एबिलिटी जोन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर आई विल मेक अ इंस्टांस इन RDS in my cloud and access by it this server. You can see here it is my RHEL OS and here I will access it. तो ऑफिस में ऐसे ही काम होगा, मैंने आपको बताया था, आपका डेटाबेस आपके क्लाउड में होगा और इसमें आप अपने अलग अलग यूजर क्रिएट करके आप इनको अपने अलग अलग क्लाइंट को दे सकते हो, ऐसे काम होता है। ठीक है, तो चलिए प्लीज वेट। ओके, नाउ आई एम कम टू हियर एंड मेक आर डेटाबेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सर्च RDS। मैंने ये सर्च किया, आप देख सकते हो, है ना, RDS। ओके, इट इज द RDS। ठीक है, अब हियर आई जस्ट कम टू हियर एंड चूज द RDS, ये देखिए। ठीक है, तो हियर आई विल चूज द क्रिएट डेटाबेस। So as I informed you, we have 8 types: Aura, MySQL, and PostGRE SQL, MySQL, MariaDB, PostGRE SQL, Oracle, है ना, ये SQL सर्वर और ये IBM DB2, 8 टाइप्स। तो एज यू विश यू कैन चूज एनी वन। तो मैं इस पे आ जाता हूँ। ठीक है, इस वाले को मैंने चूज किया। अब नाउ हियर वी हैव सम मोर ऑप्शन, स्टैंडर्ड एंड इजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, स्टैंडर्ड मीन्स यू कैन फॉलो दीज ऑप्शन ऑल्सो, इसमें ऐसे ऑप्शन कुछ नहीं होंगे, इसलिए चलिए जी, तो मैंने इसको चूज किया। आफ्टर दैट इट इज आस्किंग विच वर्जन यू नीड टू इंस्टॉल। तो एज योर विश यू कैन चूज द एनी वन अकॉर्डिंग ऑफ योर नीड। ठीक है, आफ्टर दैट अंडरस्टैंड, इट इज आस्किंग द यूज ऑफ डेटाबेस। आपका जो यूज है वो किस तरीके के एनवायरनमेंट में है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, टेस्टिंग एनवायरनमेंट में, कि आपका फ्री अकाउंट है। तो अंडरस्टैंड, अगर आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आते हैं तो नाउ इट प्रोवाइड यू द हाई फाई हार्डवेयर। ये देखो, आपको ये बहुत हाई फाई हार्डवेयर प्रोवाइड कराएगा आपके प्रोडक्शन के हिसाब से। आप इधर देख सकिए, ये देखिए 48, 64, 256 है ना, काफी हाई फाई है, बहुत हाई फाई हार्डवेयर आपको प्रोवाइड होगा। बट इफ यू गो फॉर द टेस्टिंग एनवायरनमेंट, तो इट विल प्रोवाइड, तब ये थोड़ा सा कम हार्डवेयर आपको प्रोवाइड करेगा, थोड़ा कम अच्छा, ये देखिए। ठीक है, लेकिन अगर आपका फ्री अकाउंट है, फ्री, तो फ्री अकाउंट में इट विल प्रोवाइड ओनली द वन हार्डवेयर, यू कैन सी हियर। ठीक है, ओनली द 2 हार्डवेयर। ठीक है, तो गाइज इट इज द डिफरेंस कि आपको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मैं अभी टेस्टिंग में आ जाता हूं, सॉरी, मैं अभी अपने फ्री में आ जाता हूं। अब गिव द एनी नेम, तो आई जस्ट गिव द नेम सिंगल एबिलिटी जोन। आप कुछ भी इधर नाम दे सकते हो, हमने कहा सिंगल एबिलिटी जोन। ठीक है, एज यू विश। अब ये जो आपका डेटाबेस है, इट विल मेक अ यूजर। ठीक है, एक एक इसका खुद का यूजर आपका क्रिएट होता है। तो आई कैन चेंज द नेम और आई कैन कीप द सेम नेम एडमिन। ठीक है,
पासवर्ड आपका क्लाउड की ओर से होगा, तो आप इधर आ जाओ। अगर आपको अपना देना है तो आई जस्ट गिव माय पासवर्ड। ठीक है, ओ एक सेकेंड, या ये मेरा पासवर्ड हो गया। ठीक है, आफ्टर दैट ये देखिए, ये तो आपका हार्डवेयर है, आपको सिर्फ 2 ही हार्डवेयर प्रोवाइड है, तो मैं इसी पे आ जाता हूं। ठीक है, इसी वाली हार्डवेयर पे। ठीक है, इसके बाद में आपका जो स्टोरेज होगा, एज आई इन्फॉर्म्ड यू, इट विल प्रोवाइड यू द 20 GB फ्री। आप इसे इंक्रीज भी कर सकते हो, बट फिर देन इट विल टेक द एक्स्ट्रा चार्जेस। ये सब तो आपको पता ही है कि कौन सी आपको स्पीड चाहिए। ठीक है, इसके बाद में एबिलिटी। अब ये देखो, अगर आप फ्री एनवायरनमेंट में आते हो तो आपको मल्टी एबिलिटी जोन का ऑप्शन आपको आएगा नहीं। इट विल ओनली प्रोवाइड द सिंगल एबिलिटी जोन। बट इफ आई क्लिक हियर इन हियर, अगर मैं इनमें से कोई इफ आई चूज, तो नाउ इट विल हाईलाइटेड, इट विल प्रोवाइड द मल्टी एबिलिटी जोन। ये देखिए आया ना इधर। बट नाउ इन दिस टाइम आई विल कम ओवर द फ्री, तो मैं फ्री एनवायरनमेंट में आ जाता हूं। ठीक है, और कम टू हियर, ओके, एंड आफ्टर दैट हार्डवेयर, ओके जी, एंड ठीक है, सिंपल, ओके। Now IPv4, if you use the IPv6, then come to here, no need, simple your VPC। ठीक है, और ये रहा आपका सबनेट। और ठीक है, अब नाउ इट इज इंपॉर्टेंट थिंग, इफ आई एम डूइंग द नो, तो आई कांट कनेक्ट द माय डेटाबेस विद माय होम पीसी। अगर मैंने इधर नो किया तो मैं इससे कनेक्ट नहीं हो पाऊं, क्योंकि ये पब्लिकली आपको नहीं एक्सेसिबल। तो आप अपनी एक इंस्टेंस क्लाउड के अंदर ही क्रिएट करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर आपको अपने ऑफिस से भी कनेक्ट करना है तो नाउ यू हैव टू डू द अलाउ यस। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट इट्स माय फायरवॉल, तो आई विल मेक अ न्यू फायरवॉल। ठीक है, इसके खुद के पोर्ट्स होते हैं। ठीक है ना, तो यू हैव टू गिव द योर फायरवॉल और गिव द एनी नेम। आई जस्ट टाइप माई एस डी। ठीक है, और एनी एबिलिटी जोन एज यू विश, वो नहीं जरूरत है। प्रॉक्सी वगैरह का अभी हमें काम नहीं होगा, ये खुद आपको इसने अथॉरिटी दे दी है। ठीक है, ये पासवर्ड ऑथेंटिकेशन से काम होगा। हाँ जी, अब नाउ इफ यू नीड टू इनेबल द क्लाउड वॉच, तो देन you can enable it, I am not, okay, and after that you can see here it is saying, ये देखो, ये आपका इतना इसका चार्जेस है मंथली, अगर आप ऐसे बनाएंगे। अब ये देखो, ये इसने साफ कह रखा है कि आई विल प्रोवाइड द इट्स अवेलेबल फॉर द 12 मंथ, है ना, 750 आवर्स फॉर RDS, और ये रहा आपका हार्डवेयर। ठीक है, तो नाउ अब दिस प्रोवाइड द 3 टाइप ऑफ द हार्डवेयर। अब ये आपको 3 टाइप के हार्डवेयर, हमने सिर्फ इधर एक ही टाइप किया था पहले, अब ये अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो नाउ अब इट प्रोवाइड यू द 3 टाइप ऑफ द हार्डवेयर। ठीक है, okay guys, after that as you see here 20 GB of the storage and 20 GB for the backup as I informed you। ठीक है, किसी को कोई अगर इशू हो प्लीज आस्क मी। तो सबसे पहले मैंने अपने क्लाउड में आई जस्ट मेक अ डेटाबेस एंड जस्ट मेक इट। ठीक है, तो इट विल टेक फ्यू टाइम, तो देन यू हैव टू कम इन योर सर्वर। ओके, आप इधर आ जाओ। अब कैसे ये अटैच होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंस्टॉल दैट पैकेज। आप ऐसे nmtui किया और इसके बाद में एक्टिवेट, एक सेकेंड, ये कैसे काम होता है आपका डेटाबेस पर, ये हमने आपको पहले पढ़ाया था RHEL में। एक बार देख लेते हैं। अच्छा, इधर ये अभी आपका नेट था ब्रिज। ठीक है, तो चलिए लेट्स सी एंड स्टार्ट द nmtui। ओके, एक्टिवेट, ओके, प्लीज वेट।
Okay, after that I will install the package of MariaDB. तो ये हम install MariaDB, ठीक है, और asterisk hyphen y. तो जरा ये एक बार आपका पहले इंस्टॉल्ड हो जाए, और इट विल ऑल्सो टेक द टाइम हेयर. ये देखो, तो नाउ क्लोज इट. ठीक है, तो गाइज इट इज क्रिएटिंग सिंगल एबिलिटी जोन. आई एम क्रिएटिंग इट. ठीक है, तो प्लीज वेट few minutes. It is also installing. So I just pause the video for some time. All right, it is all right done. And after that restart the service. So systemctl restart MariaDB है ना. अब now after install this package, how I can connect with my cloud database. So you can see after make the database, it's give you the URL here. It is the URL. You have to copy it. Ab how I can access it? So let's see. So now we have a command. The command is mysql hyphen u, means the user and the its name was admin, है ना. admin था हमारा इसका नाम. ठीक है, after that hyphen p मतलब password and host. तो host is and paste the URL. It is the way to access it. So now it is, तो here I just give the password. तो I just give the password. और ठीक है, और according of the picture I can see and edit the data. तो कैसे, तो आपको ये मैंने पढ़ाया था कमांड्स. शो डेटाबेसेस है ना, डेटाबेसेस. ये देखिए, तो आपको शो हो रहा है. नाउ इफ आई नीड टू मेक अ डेटाबेस, तो कैसे हो सकता है. क्रिएट database and give the any name ABCD. ठीक है, तो you can see here it is done. तो मैंने जो आपको पढ़ाया था I can read and edit the data. तो ये इसके अंदर का तो हमने आपको पढ़ा चुके हैं पहले ही कि इसमें आपका टेबल्स वगैरह पे कैसे काम होता है. ठीक है, नाउ हियर आई जस्ट ओनली इन्फॉर्म यू हाउ वी कैन कनेक्ट द RDS विद माय ओन सर्वर. ठीक है, ये आपका कनेक्ट हो गया. डन. आफ्टर दैट आई कैन ऑल्सो मेक द, अब यहां पर आ जाते हैं. अब हाउ, अब नाउ इट इज द फर्स्ट थिंग. अब आई जस्ट कम ऑफ द थर्ड थिंग. ठीक है, रीड रेप्लिका. तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आपके पास पहले एक इनमें से कोई आपके पास होनी चाहिए. आपके पास जो ये डेटाबेस होगा उसी की रीड रेप्लिका आपकी क्रिएट हो सकती है. कैसे होती है जी, इधर देखिए. नाउ हाउ आई कैन मेक द रीड replica. So go to here. ये देखिए, after that go to here, take the action and you can see here read replica. So here I will show you, give ये देखो, I am not doing the anything, simple okay okay, and just create it. Create read replica. Oh, give the any name. तो I just give the name read replica. आप कुछ भी नाम दे सकते हो. ठीक है, इसी का सिंगल एबिलिटी जोन का. ठीक है, और हियर आई जस्ट क्रिएट रीड रेप्लिका. ओके, डेटाबेस db इंस्टेंस इज नॉट टेबल स्टेट. व्हाई, मेंटेनेंस ऑटो माइनर, ये सब मैं हटा देता हूँ. ठीक है, नो नीड. पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, माई एस जी एबिलिटी जोन. ओ, पब्लिकली एक्सेसिबल ना, आई एम जस्ट नॉट डूइंग दैट. ये इम्पॉर्टेंट चीज था. ठीक है, ठीक है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है. क्रिएट रीड रेप्लिका. व्हाट इज द इशू. अच्छा, ये हमारा फ्री हार्डवेयर है ना, इसकी वजह से. तो फ्री हार्डवेयर में ये इतना आपको प्रोवाइड नहीं देते हैं, इतना आपका फ्री अवेलेबल नहीं देते हैं, इसलिए. ठीक है, तो आई जस्ट डू द वन थिंग, मल्टी एबिलिटी जोन भी आप क्रिएट कर सकते हो. db इंस्टेंट इज नॉट अवेलेबल स्टेट. अच्छा,
ये मुझे अभी इधर फ्री अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि इधर ये ऑलरेडी मैंने यूज कर रखा, तो आई एम जस्ट डूइंग द वन थिंग। ओके, आई एम जस्ट इरेजिंग इट, ठीक है ना। ये अभी आपका हो रहा है, इसलिए हाँ अब ये हो गया अवेलेबल, अब आपका हो जाएगा। चलिए अगेन कम, क्रिएट रीड रेप्लिका, गेट द एनी नेम, रीड, ओके, रेप्लिका। वो पहले आपका स्टेट में नहीं था, इसलिए डेटाबेस हार्डवेयर, ठीक है, हार्डवेयर, ओके। और हेयर पब्लिकली एक्सेसिबल, ठीक है, एसडी वगैरह सब है ही। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, ये सब मुझे नहीं चाहिए ना। ये देखो, नाउ इट इज क्रिएटिंग। अब आई विल शो यू here according of the picture, as I informed you, we can read and write in the single availability zone, but here I can only read the data. So let's see here. So first of all I just exit from here, ठीक है, मैं इससे exit हो जाता हूँ। और here waiting, it's created। यहाँ पर भी इसका अपना एक URL अभी आपको शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब अब अनदर स्टेट इज, तो इट विल टेक टाइम, तो आई जस्ट टेल यू हाउ वी कैन मेक द मल्टी एबिलिटी जोन। सेम स्टेप्स, एवरीथिंग इज सेम, ओनली what you have to do, only you have to choose here, choose the any, और देखो इधर only you have to choose the here, change the hardware। सिर्फ आपका इधर ये हार्डवेयर चेंज होगा, ये देखो, प्रोडक्शन और देव टेस्ट, आपने इसको चूज किया, बस ये आपका ऐसे आने लग जाएगा, और सेम टू सेम स्टेप्स, ठीक है। तो इसको आप लोग बना लेना अपने आप से, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया मल्टी एबिलिटी जोन, सेम टू सेम स्टेट रहेंगे। ओके, आई एम जस्ट शोइंग यू हेयर द थिंग, रीड रेप्लिका, ठीक है। प्लीज वेट, आई जस्ट पॉज द वीडियो। ओके, इट टेकिंग सम टाइम, तो आई जस्ट कम टू द अनदर प्रैक्टिकल आफ्टर मेक इट, आई विल शो यू द प्रैक्टिकल, ठीक है। तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलास्टिक बीन स्टॉक। अब मैं जो आपको अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं उसका क्या नाम है जी, इलास्टिक बीन स्टॉक। तो लेट्स सी। इलास्टिक बीन स्टॉक, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी actually में, this is actually only for the developer team। देखो what happened in the industry, example, in my office my a coder make a new application। एक हमारे ऑफिस में एक डेवलपर है, उसने एक न्यू एप्लीकेशन को क्रिएट किया है, या कोई भी कोड हो सकता है। अब नाउ ही हैज टू टेस्ट इट, so now he not know the anything about the cloud, so now he will come to us and we are cloud engineer, so now it is asked for the testing। so now for it we have to make our instance, we have to make the key, है ना। for the instance we have to make the sg, we have to make the public, we have to give the public ip here, ठीक है। तो पहले ये इंस्टांस आपको क्रिएट करना पड़ेगा, फिर आफ्टर दैट एग्जांपल इसका एप्लीकेशन है पीएचपी में, तो नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू इंस्टॉल द पीएचपी सॉफ्टवेयर, है ना। एंड आफ्टर दैट ही विल एक्सेस इट एंड डू द टेस्टिंग। तो नाउ यू कैन सी ही इज डिपेंडेंट टू अस, ये हमारे ऊपर है, ठीक है ना। तो इधर क्लाउड ने क्या कहा कि ठीक है, अब अगर ये चाहे तो ये खुद भी सारा काम कर सकता है, नो नीड टू डू द एनीथिंग, ओनली आई विल आस्क द फ्यू थिंग, ही जस्ट फिल अप एंड आई विल मेक द ऑल एनवायरमेंट ऑटोमेटिकली। मैं खुद सब कुछ उसको क्रिएट करके दे दूंगा, उसको क्या क्या चाहिए बस इतना बता दे वो, ठीक है। तो इलास्टिक बीन स्टॉक इज एक्चुअली में इट इज द पैस, पैस मीन्स प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, platform as a service। in the past the cloud give the hardware and operating system, and after that the coder apply their application and test it, ठीक है।
तो ये आपका पैस का वो होता है एग्जाम्पल इलास्टिक बीन स्टॉक। ठीक है, तो आई जस्ट टाइप हियर इट इज अ PaaS environment, PaaS environment where developer test the application, test the application। ठीक है, तो नाउ क्लाउड या AWS provide the environment automatically। ठीक है, या फिर provide the environment। तो इधर सिर्फ उसको सिर्फ कुछ कुछ को बस फुल करना होगा और फिर ये आपका क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ ये कैसे होगा ये मैं आपको बता देता हूं। तो एग्जांपल हमारे ऑफिस में एक जो डेवलपर है उसका पीएचपी में कोई कोड है, पीएचपी पर ये कुछ भी हो सकता है, आपका पाइथन भी हो सकता है, जावा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कोड है और इसको ये टेस्ट, तो ये अब इसको इन्वायरमेंट खुद चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू IAM रोल। आप एक IAM रोल आपके पास होना चाहिए और इसको एडमिनिस्ट्रेटर का फुल एक्सेस होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर फुल एक्सेस। क्योंकि आप अभी इलास्टिक बीन स्टॉक को अपने EC2 के साथ अटैच कर रहे हो, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। आफ्टर दैट you have to make a SG। ठीक है, and after that you have to make a key for the instance। तो first of all quick fast I just come to and make the new IAM role first of all। ठीक है, पहले मैंने एक IAM रोल को बना लिया। okay, it is almost done। I will come also in this topic, but now let's see here। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक अ रोल, क्रिएट रोल। ठीक है, और माय सर्विस इज EC2, हमारा इस पे काम हो जाना है। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट ओके एंड गिव द एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट एंड गिव द एनी नेम। तो आई जस्ट टाइप हियर इलास्टिक रोल। ठीक है, आफ्टर दैट मेक अ न्यू रोल। ओके, इट इज डन, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप you have to make a SG with full access। एक आपके पास सिक्योरिटी ग्रुप होना चाहिए, उसमें फुल एक्सेस होना चाहिए। तो गो टू द सिक्योरिटी ग्रुप, choose the anyone। example I just go to the here default and inbound rule and outbound rule, ये सब आपको पता ही है। inbound rule में I just allow the all traffic। okay, very good। and outbound also give the all traffic। ये देखो, ठीक है, ऑल ट्रैफिक। चलिए ठीक है, इसके बाद वी हैव टू मेक अ की। तो की पेयर, तो एग्जांपल इफ वी हैव अ टेस्ट की। ओके ठीक है, नाउ अब हाउ आई कैन मेक द इलास्टिक बीन स्टैक। तो कम टू हियर, ये जब ये 3 स्टेप्स हो जाएंगे, नो नीड टू डू एनीथिंग, सिंपली फिल द थिंग्स एंड जस्ट इट विल मेक द एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली। ओके, तो नाउ you have to check a application or the web application। तो now you have to choose here। ठीक है, तो आप इधर आ जाओ, give the any name। I just give the name my web, give any name। ठीक है, तो it's give a specific name। okay, just okay, platform, choose the platform which language। तो you can go to the here anyone, you can see here आपका कोड इनमें से किसी पर भी हो सकता है। तो करेंटली आई विल गो फॉर द PHP, मैं PHP के लिए आ गया। सिंपल सैंपल एप्लीकेशन, अगर अभी आपके कोड हैं तो आई कैन अपलोड हियर सिंपली, बट आई विल टीच यू हाउ वी कैन अपलोड द कोड आफ्टर मेक इट। तो आई विल गो फॉर द सैंपल एप्लीकेशन। ठीक है, आफ्टर दैट द सिंगल इंस्टांस। ओके, नेक्स्ट। ओके, एग्जिस्टिंग रोल हमारे पास है, हमने कहा हाँ जी, तो ये देख सकते हैं इलास्टिक रोल, की पेयर टेस्ट की एंड अगेन ये इलास्टिक रोल है ना। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट एंड आफ्टर दैट द कोडर चूज द VPC only। okay,
एंड ठीक है, एंड activated public IP, yes, and give the any subnet and same subnet. Okay, I can choose the anyone simply here. After that, no need to do anything, simple next. Okay, and after that, ये देखो अब इसमें काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, बट अब आप मत करो, सिंपल ओके, इट विल चूज द सिक्योरिटी ग्रुप, आई जस्ट गिव हेयर डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है, डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप, आफ्टर दैट हार्डवेयर, ओके, एंड या नेक्स्ट। और सिंपली अब नाउ नो नीड टू, अगर ये सब आपको आता है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं आता है तो सिंपल स्किप। ओके, आई जस्ट गो टू द प्रीवियस ऑप्शन और हियर स्किप, ठीक है। तो आप, मैंने अभी इसको स्किप किया क्योंकि मुझे इतना अभी नहीं आना है। तो नाउ अब देखो ऑटोमेटिकली आई जस्ट फिल द थिंग्स अकॉर्डिंग टू इट्स नीड एंड इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट द एनवायरनमेंट। ये इंस्टांस अपने आप से आ जाएगी, सब कुछ अपने आप से बनाएगा, आपको कुछ नहीं बनाना। तो देखिएगा, अब देखो इट इज स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट make a environment automatically, it make a amazon s3 ये देखिए है ना ऑटोमेटिकली, ठीक है। आफ्टर दैट इट विल ऑटोमेटिकली मेक a इंस्टेंस, सब कुछ अपने आप बनाएगा, आपको कोई अब आपका हेडक नहीं है। तो ये बहुत इजी वे होता है अपना, कोई भी अगर आपको एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करवाना है या टेस्टिंग के लिए, तो आप बहुत ज़्यादा हेडक ना लें, सिंपल। तो यू कैन सी हियर इट जस्ट मेक अ न्यू एसजी, इसका क्या नाम होगा, ये नाम होगा। तो अब ये स्टेप बाय स्टेप सब अपने आप होता जाएगा। तो गाइज इट विल टेक फ्यू टाइम। तो आई जस्ट कम इन माय प्रीवियस प्रैक्टिकल जो कि अभी पेंडिंग है, ये देखो रीड रेप्लिका। तो अकॉर्डिंग टू द वर्ड here I can see only the data, I can't edit the anything, ठीक है। तो I just choose its URL और copy and go to here, give the password, ठीक है। और here I just give the new URL, okay, simple, and paste here, देखो अब give the entry, give the password। अब देखो here I can only see the data, show database, yes I can see show databases आ रहा है जी। बट इफ आई ट्राई टू मेक द एनीथिंग, क्रिएट डेटाबेस और गिव द एनी नेम एक्स वाई जेड कॉलन, तो देखिए इसने क्या कहा कि नहीं, इट इज ओनली द रीड ओनली, है ना, ठीक है जी। तो ये ऐसे काम भी आप कर सकते हो, डन ना, ठीक है। आफ्टर मेक इट यू हैव टू इरेज द एवरीथिंग, हाउ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to go to here and choose it, okay, and action and delete। it will ask you कि now I will make the any snapshot, no need, ठीक है, no backup, ठीक है। after that I acknowledgement and type here delete me, ठीक है, और just delete। तो ये आपका अभी आपका इरेज हो जाएगा और here I am also deleted, ठीक है। तो delete me, आप इसको प्रॉपर हटाना क्योंकि इसका बहुत हैवी बिल आ जाता है, ठीक है, delete me। तो you can see here it will take time। अब now come to here environment, yeah, come to here, ये देखो। तो first of all it is starting the make environment, after that make a bucket sg automatically, ठीक है। इसने इसकी हेल्थ को चेक किया, तो नाउ जस्ट गिव द पब्लिक आईपी, इलास्टिक आईपी, है ना, ये देखो इंस्टांस आपका क्रिएट हो गया है। ये देखो सब कुछ अपने आप से बन रहा है, सब कुछ। तो यू कैन सी हियर इट मेक अ न्यू इंस्टांस, वी नॉट मेक एनीथिंग, ऑटोमेटिकली, ये देखिएगा, इट प्रोवाइड द ऑटोमेटिकली मेक अ न्यू इंस्टांस, ये देखिए है ना ऑटोमेटिकली।
everything make the automatically. Now if I go to here or take the connect option, okay, and go to here connect, ठीक है. So as you know, it is my PHP. So PHP package is installed here. Let's see here. जो PHP होता है वो कहाँ पर होता है? CD where के अंदर, www के अंदर, HTML में. ये रहा इसका पेज, ये देखो. And now if I go to the public IP, ये देखो, and click here and open here. So now it will open the default page of PHP. ये देखिए. तो ये पेज कहां से ओपन हो रहा है? ये रहे इसके कोड. कौन से वाले कोड? ये वाले. अब नाउ इट मेक ओनली द एनवायरमेंट. अब आई विल अपलोड माय कोड एंड टेस्ट. तो हाउ आई कैन अपलोड द कोड? तो फॉर द प्रैक्टिकल आपको, क्योंकि कोडिंग का काम तो हमारा नहीं होगा, तो यू हैव टू जस्ट ओनली फॉर द टेस्टिंग गो टू हियर एंड जस्ट टाइप हियर फ्री वेबसाइट. ठीक है. तो इट विल प्रोवाइड द कोड. आपको कौन सी साइट को चेक करना है? तो हमने कहा ये वाली साइट को एग्जाम्पल. और दीज आर द कोड. देखो ये इसके अपने कोड्स हैं. नो नीड टू एक्सट्रैक्ट इट. ठीक है. ये आपका एक्सट्रैक्ट नहीं होगा. सिंपली मैं इसको अभी ऐसे ही अपलोड कर कर दूंगा इस वाले को. ठीक है. तो लेट्स सी हियर. अब थिंग इज दैट हाउ आई कैन अपलोड माय कोड. ये जो अभी आपका बना है इसमें ये इसका खुद का पेज है. तो हाउ आई कैन अपलोड माय पेज? तो लेट्स सी हियर पेज कैसे अपलोड होगा. तो नाउ लेट्स सी हियर अपलोड एंड डिप्लॉय है ना. आप देख सकते हो. चूज फाइल. तो आई जस्ट अब चूज माय फाइल. इट शुड बी इन द विन ड्रार. ठीक है. ये इसी में होना चाहिए. और गिव द एनी नेम और जस्ट टेक द ओनी एंड जस्ट मेक इट. To understand, it will erase these file and now automatically upload your data. तो please wait, it is uploading. अभी आपका ये अपलोड हो रहा है. ये देखिए है ना. तो प्लीज वेट. आई जस्ट पॉज द वीडियो. नाउ इट इज सेइंग कि यस अपलोड आपका हो चुका है. तो लेट्स सी हियर. तो हियर इफ आई जस्ट सी, तो यू कैन सी हियर इट इरेज द ऑल फोल्डर्स. ठीक है. और यहाँ पर ये इसने सारी फाइल्स को हटा दिया है. और इसने क्या किया है, एक बार जरा मैं एग्जीक्यूट हो जाता हूँ फिर से. मैं आई जस्ट कम टू इनसाइड हियर एंड सी द. तो इट मेक अ फोल्डर. ये एक फोल्डर का इसमें अब एक आ गया है. और इफ आई गो द इनसाइड द फोल्डर cd 21 एंड नाउ इट इज द फाइल. ये देखो. अब now understand, if I am trying to open this page, अगर मैं चाहता हूं कि ये वाला पेज अभी आपका ओपन, तो देखिएगा now it will fail. ये देखिए fail. तो एक्चुअली में you have to add the folder name here. This folder name you have to add this folder name after the URL. तो अभी आपका पेज ओपन होगा. लेकिन थिंग इज दैट वी नीड टू ऑलवेज ऐड दिस वन. अब ये आपका होल वर्ल्ड में कहीं पर भी ओपन, लेकिन ये मुझे हर बार अलग से ऐड करना पड़ रहा है. तो हाउ आई कैन ऐड इट? डिफॉल्ट. डिफॉल्ट अब ये आपका ऐड हो जाए तो कैसे होगा जी? देखिए डिफॉल्ट के लिए यू हैव टू कम इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन. ठीक है. आफ्टर दैट गो टू एंड हियर और जस्ट अपडेट मॉनिटरिंग में आप आ जाइए. Update here. You have to click here update monitoring and logging. ठीक है. After that you have to go to here. एक मिनट. Not go to here. Monitoring environment, instance traffic and scaling. इसी में आना है हमें. तो edit. एक सेकेंड देख लेते हैं अभी जरा. क्लाउड लॉग्स. ठीक है. लाइफ साइकिल मैनेज. ठीक है. पिचिंग ईमेल एड्रेस. या ये देखिए here we have a
ऑप्शन इट इज आस्किंग जस्ट टाइप हियर द फोल्डर नेम, तो आप ऐसे स्लैश के साथ ना वो फोल्डर का नाम आपने इधर ऐसे सेव किया, ये देखो, ठीक है। यू हैव टू ऐड हियर, तो नाउ इट विल ऐड इन द डिफॉल्ट एंड आफ्टर दैट अप्लाई, it will take few time। ये देखिए इन अपडेट अभी आपका हो रहा है एंड आफ्टर टाइम नो नीड टू ऐड द एनीथिंग, तो देखिएगा पेज अभी आपका ऐसे ही ओपन हो जाएगा। प्लीज वेट। ये देखिए इलास्टिक बिन स्टैक अपडेटिंग योर एनवायरनमेंट, तो देखिए कितनी आसानी से जो भी हमारे ऑफिस का कोडर होगा अब उसको हमारे पास नहीं आना है, सिंपली उसने अपने एनवायरनमेंट को चूज किया, अपने कोड को अपलोड किया और कितनी आसानी से कोड अब आपके टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो जब कल को आप आईटी इंडस्ट्री में होंगे तो आपको अगर टेस्टिंग एनवायरनमेंट में है तो इस पे बहुत ज्यादा काम होता है। इलास्टिक भी ये देखिए एनवायरनमेंट डन, तो आई जस्ट गो टू हियर एंड जस्ट ओपन इट। अब नो नीड टू ऐड द एनीथिंग, ऑटोमेटिकली इट इज ओपन द वेब पेज, ठीक है। तो अब ये पेज आपका कहीं से भी, अब नाउ आफ्टर द टेस्टिंग simple delete the environment, simple, अब it will erase the automatically everything all instances, आप देख सकते हो ये सबको हटा देगा अपने आप से, ठीक है ना। तो सिंपली अपलोड तो इट विल मेक और सिंपली टर्मिनेट तो इट विल इरेज द एवरीथिंग। ये देखिए टाइप द एनवायरमेंट नेम, कॉपी एंड पेस्ट हियर, ठीक है। तो देखिए जरा मैंने किया टर्मिनेट, अब ऑटोमेटिकली इट विल इरेज द एवरीथिंग, तो देखिए कितना आसान है इलास्टिक, और ये सब कुछ अपने आप से आपका हटा देगा एवरीथिंग, ठीक है गाइस। तो नाउ टुडे आई इन्फॉर्म्ड यू द टू थिंग्स, आरडीएस मैंने आज आपको पढ़ाया एंड इलास्टिक बीन स्टॉक। एनी डाउट एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क मी। नो डाउट्स, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही होगी। ओके जी, ओके, बाय बाय एवरीवन।